Okay. Good morning to everyone. Please be here. We have to talk again microbial anatomy and physiology. We are talking about the different structures and organelles which are present in bacteria. We have to study it in detail to understand the microorganism. What is the microorganism? What it have? What type of organelles are present in microorganism or in bacteria? And we have studied many organelles such as capsules, such as flagella, such as pili, and now we are present in structure, function, and composition of bacterial cell wall. So, different structures, functions of bacterial cell wall we have studied. It provides protection to bacterial cells. It provides rigidity to bacterial cells. It provides shape to bacterial cells. It is responsible for the action of antibiotics. It is responsible for the development of resistant mechanisms in microorganisms or in bacterium. And today we are talking about little bit new. So please, bacterial cell wall is composed of macromolecular network. किस चीज का बना हुआ है? We have to see the bacterial cell. Bacterial cell wall is composed of macromolecular network. Macromolecular network. So we should give this sentence. First, bacterial cell wall is composed of macromolecular network. That network is made up of peptidoglycan. That is made up of peptide plus glycan. Glycans are sugars. Peptide means protein. Small protein molecules. Bacterial cell wall is composed of macromolecular network which is called peptidoglycan, and it is composed of peptide plus some sugar molecules which is called glycan. Just like if you are looking the wall of this building, it is made up of bricks and cement. If you will see that brick, that composition will be further in detail. So in same structure, if we will define in bacterial cell, the cell wall of bacteria is composed of macromolecular network. In macromolecular network, there are two things, peptide plus glycan. So that is called peptidoglycan. Peptidoglycan consists of peptidoglycan consists of repeating disaccharide. Peptidoglycan consists of repeating disaccharide. You have to complete this sentence up to this. Peptidoglycan consists of repeating disaccharide. जैसे दीवार बनाते वक्त हम एक ईंट के बाद दूसरी ईंट रख देते, रिपीटेड ईंटें रख देते हम ताकि वो दीवार बन जाए. सिमिलरली यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसमें किस चीज की पेप्टाइडोग्लाइकेन की ईंटें हैं, कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग डाइसक्राइड, जिसमें रिपीट डाइसक्राइड के मॉलिक्यूल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन सब सेम आपस में. दे आर अटैच्ड बाय पॉलीपेप्टाइड.
they are attached by polypeptide that surrounds and protects this bacterial cell, that surrounds and protect this bacterial cell. So we have to establish here one thing. Bacterial cell wall is composed of peptidoglycans, repeated units of peptidoglycan. जिस तरह हम दीवार के ऊपर एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, दूसरे के ऊपर तीसरा ईंट रखते जाते हैं और उनके दरमियान सीमेंट की बारीक लेयर लगाते हैं ताकि वो आपस में अटैच हो जाएं. Similarly, in bacterial cell wall, the ink is peptidoglycan. The wall is made up of peptidoglycan. Glycan जो sugar के molecules हैं. Let we can see in detail. Disaccharide portion is made up of monosaccharides. डाइसुक्राइड के रिपीटेड मॉलिक्यूल्स की हमने बात की सेल वॉल के अंदर. डाइसुक्राइड रिपीटेड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल एंड दैट डाइसुक्राइड पोर्शन इज मेड अप ऑफ मोनोसैकराइड्स. दो मोनोसैकराइड मिलकर हर मॉलिक्यूल को बनाते हैं. दो मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल मिलकर डाइसैकराइड बनाते हैं. उसमें एक मॉलिक्यूल ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन और दूसरा मॉलिक्यूल ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. इन दोनों से ग्लाइकेन मॉलिक्यूल बनता है. ग्लाइकेन इज डाइसैकराइड मॉलिक्यूल एंड दिस डाइसैकराइड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मेड अप ऑफ टू मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स. And these two monosaccharide molecules are the N-acetyl glucosamine NAG and N-acetyl muramic acid NAM. ये दोनों क्या है? Monosaccharides हैं. This is one monosaccharide and another monosaccharide is this, and these two are forming disaccharide, which is called glycan. Cell wall is made up of peptidoglycan. Peptide means protein. Glycan means disaccharide. That disaccharide is made up of two monosaccharides, N-acetyl glucosamine plus N-acetyl muramic acid are present in it. If you will see the structure of bacterial cell wall, you will find like this. Suppose this is bacterial cell wall. पूरी cell wall बनी हुई. इसमें क्या चीजें हैं? Repeated units of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. N-acetyl glucosamine plus N-acetyl muramic acid. N-acetyl glucosamine plus N-acetyl muramic acid. ये आपस में जुड़े हुए हैं. ये वो लिखे हैं जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल बनता है. ये आपस में जुड़े हुए एक लाइन. उसके बाद जब ये एक रदम पूरा हो गया, रदर यू नो रदर किसको आप लोग जानते हैं, आप लोग मिस्त्री का काम किया होगा, इंजीनियरिंग किया होगा, इनको समझाना है. जब वो दीवार के ऊपर एक लेयर एक लाइन पूरी करने तो उसको एक रदर कहते हैं. तो उसके बाद जब दूसरी लाइन ईंटों की पूरी करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दूसरा रदर कहते हैं. दिस वन इज द फर्स्ट रदर. ठीक है. N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine. उसके बाद जब दूसरी लगानी है तो दरमियान में ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल लगा दिए इसने. ये नीचे वाले हृदय को ऊपर वाले हृदय के साथ बाइंड कर दे. ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिस तरह दरमियान में हम सीमेंट लगाते हैं, ये इसके साथ इसको बाइंड करे, ये इसके साथ उसको अगले इनको बाइंड करे. सिमिलर. उसके बाद दूसरा हृदय वही N-acetyl
glucosamine, N-acetyluramic acid. N-acetylglucosamine, N-acetyluramic acid. Same. The line will be complete. And again, protein molecule will be attached to this. कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ नहीं. यहाँ पर आप जरा अगर देख लेते हैं तो protein molecules are only attached on an acetyluramic acid. They are attaching one N-acetyluramic acid to adjacent N-acetyluramic acid. N-acetyluramic acid will be attached by peptide bond to another N-acetyluramic acid, जिसकी वजह से एक पूरा जाला बनता जाता है, दीवार कंप्लीट होती जाती है. अगर हम इसको यूं रिवर्ट करके देख लेते हैं कि ये एक दीवार मुकम्मल हो रही है. This is bacterial cell wall. अगर हम मोनोसैकराइड्स को देखना चाहते हैं तो these are the monosaccharides. सपोज अगर हम ये चाहते हैं कि N-acetyluramic acid किस तरह का है. N-acetyluramic acid ये है स्ट्रक्चर. This is a hexagonal sugar, 6 carbon containing sugar of 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये वाला 6. ये 1 sugar molecule और यहाँ पर इसके साथ एक RH molecule जुड़ा हुआ है. ठीक. दूसरा molecule monosaccharide ये है. This is N-acetylglucosamine. और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं 1, 2, 3, 4. और ये 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं. इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. These are the units of the cell wall. N-acetyluramic acid plus N-acetyluramic acid और इन दोनों ने मिलकर से एक मॉलिक्यूल बनाया है. उसको हम क्या कहते हैं? डाइसैकराइड या ग्लाइकेन कहो इसको. ग्लाइकेन. और उसके साथ जब पेप्टाइड मॉलिक्यूल कहीं पर आपस में जुड़ा हुआ है N-acetyluramic acid में इस जगह में जब पेप्टाइड प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर इसको दूसरे N-acetyluramic acid के साथ बाइंड करेगा तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्डिंग कहेंगे. तो ये मुश्किल नहीं है. हम क्या बात कर रहे हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं. बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकेन. इसमें दो चीजें हैं, एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल मौजूद है और दूसरा ग्लाइकेन शुगर मौजूद है. ग्लाइकेन शुगर इज कंपोज्ड ऑफ 2 molecules which are monosaccharide named as N-acetyluramic acid and N-acetylglucosamine. These are 2 repeated units. देखिए कहीं ऐसा नहीं है कि N-acetylglucosamine के बाद दूसरा भी मॉलिक्यूल N-acetylglucosamine का है. नो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि उनकी ये बॉन्डिंग जनरेट नहीं होगी. नहीं. So this is the structure of bacterial cell wall and actual chemistry is this. इसमें कोई चीज मुश्किल जो आपको महसूस हो रही हो? कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है कि सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकेन. पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन. ग्लाइकेन इज sugar. Disaccharide which is made up of 2 monosaccharides N-acetyluramic acid plus N-acetylglucosamine. 2 molecules की बनी हुई आपस में, and these 2 molecules are attached with each other. These 2 monosaccharides are attached with each other through beta 1,4 glycosidic linkage. इसी तरह ये चेन बनती जाएगी.
chain will be formed. उसके बाद second chain बनेगी, लेकिन first chain with second chain will be bind through N-acetylmuramic acid. N-acetylmuramic acid से प्रोटीन का मॉलिक्यूल अटैच होगा पेप्टाइड का, और वो दूसरे N-acetylmuramic acid के साथ जाकर उसको बाइंड कर देगा, क्योंकि this molecule have the site to bind some any molecule R. Alternating alternating, what means of alternate? के बाद दूसरा alternate, एक A और दूसरा B. Alternating N-acetyl glucosamine and N-acetylmuramic acid molecules are linked in row. N-acetyl glucosamine plus N-acetylmuramic acid are linked in row, to form a carbohydrate. अब ये जब बन जाता है तो इसको हम पूरा एक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, which is called backbone glycan portion. ये glycan portion बन जाता है. N-acetylmuramic acid plus N-acetylglucosamine, and these repeated units, they will form carbohydrate, means disaccharide. Disaccharide means glycan. These will form glycan molecule, and this row will be complete. ठीक है, it will form backbone. दीवार के अंदर जो ईंटें होती हैं, मजबूत स्ट्रक्चर वही ईंटें ही फराहम करती हैं. तो सिमिलरली इन बैक्टीरियल सेल वॉल, N-acetylmuramic acid plus N-acetylglucosamine, these are forming glycan, and glycan is forming the backbone glycan portion. जैसे एक रो बन गई, उसके बाद adjacent rows are linked by peptides. Adjacent rows are linked. अब इस रो को इसके साथ बाइंड किया है किसके थ्रू? पेप्टाइड मॉलिक्यूल के थ्रू. ये पेप्टाइड पोर्शन हो गया 1 2 3 4. ये पेप्टाइड पोर्शन है, और ये एक रो को दूसरे रो के साथ लिंक अप करता है, ज्वाइन करता है. वो कुछ और बन जाए, जैसे फिर वो बैक्टीरिया नहीं होगा, शायद और पकड़ा हो. नेचर की जेनेटिक कंट्रोल, जीन की जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जीन है जो सेल वॉल की सिंथेसिस या उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, नेचर मेंटेन इट इज कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो फंक्शन मेंटेन किया हुआ है, दैट मस्ट हैव टू कंट्रोल दिस थिंग. अगर कोई यूनिट दरमियान में गलत हो जाता है, दे विल डिलीट प्रूफ रीडिंग, उसको दरमियान से डिलीट करके दोबारा से सही मॉलिक्यूल लाएंगे. और अगर ऐसी कोई चीज हो गई, मे बी दैट बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि N-acetylmuramic एसिड और N-acetylglucosamine के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो बॉन्ड नहीं बनेगा. वो बॉन्ड नहीं बनेगा तो वहां पर सुराख रहेगा. अगर सुराख रहा तो फिर कुछ भी चीज उसको डैमेज कर सकती है, तो वो डिफेक्टिव हो, और डिफेक्टिव सेल्स आर नॉट सर्वाइव, रिजेक्शन होगी उसकी. This thing you can see here. My N-acetylglucosamine का मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका पेप्टाइड लिंक मौजूद है. N-acetylmuramic acid.
न्यूरामिक एसिड, ये स्ट्रक्चर, और इसमें जो है ना एडजेसेंट चेन के साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल इसको अटैच कर दी। इस स्ट्रक्चर में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आई है। डिफरेंस क्या होगा? एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, एन-एसिटाइल ग्लूकोज, इनके जगह नो 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 नो, यहाँ पर जिस जगह में जो साइट मौजूद है, अब बायोकेमिस्ट्री में आप उसको मजीद डिटेल पढ़ेंगे, इस जगह में जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड के साथ जिस जगह में प्रोटीन उसके अंदर पाए, तो उसके लिए मॉलिक्यूल के लिए जगह नहीं है, वो मॉलिक्यूल वहां पर रह नहीं सकता, आर अटैच होने के लिए जगह नहीं। तो एक मिनट इसको ओपन होने, ये इस जगह में बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। बात का क्वेश्चन ये है कि ये वाला पेप्टाइड जो मॉलिक्यूल है, ये इसके ऊपर क्यों नहीं, बेसिकली यही है ना। तो ये इस यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हर पेप्टाइड के ऊपर, सॉरी हर ग्लाइकेन के ऊपर स्पेसिफिक साइट ऑफ अटैचमेंट है, क्योंकि इसके लिए ओपन साइट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, एक जगह में है उसके लिए। इस ऑक्सीजन के लिए ये जगह फिक्स है, इस मॉलिक्यूल का अपना स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन को हम यहाँ नहीं ला सकते, नेचर इसको मेंटेन करे। तो यहाँ पर अगर हम प्रोटीन जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल है यहाँ पर अटैच हो सकता है, और इसमें कहीं जगह नहीं होगी दूसरी, इसमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी इनरिच है, इसमें फंक्शनल ग्रुप इनके दरमियान नहीं बनाओगे, ये चेन आकर अगले वाली चेन के साथ जुड़ेगी। ये मॉलिक्यूल यहाँ से एक, ये एक लाइन है, ये एक रो है, ठीक है ना। ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके साथ आगे और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ और जुड़ा और जुड़ा, ठीक है। यहाँ पर अब दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरी लाइन, उसमें वही कह रहा हूँ ना, मॉलिक्यूल जो आर मॉलिक्यूल के अटैच होने के लिए जगह नहीं है, वैलेंसी खाली नहीं है। केमिस्ट्री के जबान में अगर बाइंड करें तो उसमें जो है ना वैलेंसी खाली नहीं है जिसमें दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो सके, उसमें उसके लिए जगह है। एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड में पेप्टाइड मॉलिक्यूल बॉन्ड बाइंड होने के लिए जगह मौजूद है, वो उसके साथ अटैच हो सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल की सरफेस जो है ना वो कंप्लीट एनरिच है, पहले से फिल है, तो उसमें अटैच होने की जगह नहीं। हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन अब छोड़ दूंगा उसको क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलहाल नहीं करो, ठीक है ना। ओके, अब अगली बात करें। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यही क्या चीज होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया cell wall consists of many layers of peptidoglycan. Now we are going little bit in depth. ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। सेल वॉल कंसिस्ट्स ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये लफ्ज लिख दें, उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट करते हैं। फॉर्मिंग थिक रिजिड स्ट्रक्चर,
ठीक, रिजिड स्ट्रक्चर। यहां पर आप रुक जाएंगे, यहां तक लिखते हो। फॉर्मिंग थिक रिजिड स्ट्रक्चर। सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट्स ऑफ many layers of peptidoglycan forming a thick rigid structure। बस यहाँ पर रुक जाइएगा। आपने शटरिंग होते हुए देखा है घरों में। शटरिंग के बाद हम उसके ऊपर जाला डालते हैं लोग, सरिये का। ये एक जाला होता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में बैक्टीरिया में क्या होता है, 2 जाले, 3 जाले, 4 जाले। उसको क्या करते हैं, थिक स्ट्रक्चर करते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, एक नजर अगर हम इसको कर लेते हैं, ये जो साइड में स्ट्रक्चर बन रही है, ये उसी तरह वो शटरिंग वाले जाल की तरह है नहीं। अब वो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ये बहुत सारी होती है, एक नीचे, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे जाले बने होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल क्या होती है, बैक्टीरियल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल बहुत थिक होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में इस जगह में सिर्फ एक जाला मौजूद होता है। सो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन, उसके साथ दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद है जो इजाफी टिकोइक एसिड, gram positive bacterial cell wall contain teichoic acid that is consist primarily of an alcohol, जिसमें OH मॉलिक्यूल मौजूद होता है, कोई ग्लिसरॉल और ऑर्बिटॉल। ये मॉलिक्यूल्स मोस्टली मौजूद होते हैं जो टिकोइक एसिड उसके अंदर इजाफी होती है, प्लस फॉस्फेट एंड फॉस्फेट, ये चीजें होती हैं टिकोइक एसिड। इसका क्या काम होता है, जो बड़ा जाला बन गया, जिसकी 3, 4, 5, 6 लेयर जो बन गई, मैनी लेयर जो हो गई उसकी, अब उनको आपस में जोड़ना भी है, उसको आपस में जोड़ना भी, नीचे वाले ऊपर के साथ, उससे ऊपर, उससे ऊपर। यकीन आप क्या करेंगे, कोई सरिया कोई ऐसी चीज नीचे वाले से बाइंड करते हुए ऊपर वाले के साथ बाइंड कर देंगे। सिमिलरली cell wall of gram-positive bacteria contain teichoic acid, consists primarily of an alcohol molecule with, जिसकी कंपोजिशन क्या है अल्कोहल मॉलिक्यूल की, वो ग्लिसरॉल फॉर्म में होता है, राइबोटोल फॉर्म में होता है, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल उसमें मौजूद होता है। क्योंकि ये 3 जो जाले बन गए, एक जाला, ठीक है ना, इसके ऊपर फिर दूसरा बना दिया, फिर तीसरा बना दिया, तो उनको आपस में अब ज्वाइन करना, उनको आपस में फिक्स करना है। उसके लिए ये मॉलिक्यूल, ये टिकोइक एसिड रिक्वायर्ड होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद होता है, और उसकी कंपोजिशन ये। पहली बात समझ में आ गई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल consists of many layers of peptidoglycan, a thick rigid structure. Cell wall of gram-positive bacterium contains teichoic acid, consists primarily of an alcohol group मौजूद होता है जिसमें, और उसकी जो कंपोजिशन है ग्लिसरॉल और ऑर्बिटोल, और उसके साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी मौजूद होता है। तो टिकोइक एसिड की भी अब क्लासेस हैं। टिकोइक एसिड नंबर 1, वाल्टिकोइक एसिड लिंक्ड टू द पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन से दूसरे पेप्टाइडोग्लाइकेन को बाइंड कर रहा है, क्योंकि एक लेयर लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, उनको आपस में क्या करता है, बाइंड कर लेता है। वाल्टिकोइक एसिड लिंक्ड टू द पेप्टाइडोग्लाइकेन। और दूसरे टाइप का टिकोइक एसिड इसमें पाया गया, दैट इज लिपोटिकोइक एसिड, spans the peptidoglycan layer and is linked to the plasma membrane। ऊपर से बिल्कुल बांधते हुए आ जाता है और जाकर उसको सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर लेता है।
ये दो टाइप के टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में मौजूद हैं। तो मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरियल सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में मौजूद हैं, उनको आपस में बाइंड करता है, उनको आपस में फिक्स करता है, स्ट्रॉन्ग कर लेता है। ठीक हो गई ये बात। लिपोटिकोइक एसिड spans the peptidoglycan layer and is linked to the plasma membrane। ऊपर से आते हुए सारे जितने भी लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन है उनको बांधते बांधते हुए उनको लाकर किसके साथ जोड़ता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ता है। This is ग्राम पॉजिटिव, दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये बहुत सारी लेयर मौजूद है, ये बहुत सारे लेयर मौजूद हैं एक नहीं की, और उसके दरमियान फिर फिलिंग की गई है किस चीज की, लिपोटिकोइक एसिड सबसे ऊपर वाले जो पेप्टाइडोग्लाइकेन के लेयर है उन सबको बांधते 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 वो तो जाकर सेल मेम्ब्रेन तक ले आता है। ठीक है, जबकि वॉल्टेकोइक एसिड ऊपर से एक कील की शक्ल में उसको बंद करके रखा हुआ है कि यार आपने जो है ना अटैच होकर किसी कोई जिस तरह हम मेखने लगाकर उसको मजबूत नहीं करते, एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ, किसी की डेप्थ को जरा ऊपर तक का ही जितना रिक्वायर्ड है नेचर को या जेनेटिक कंट्रोल को उसी हिसाब से ये दरमियान दरमियान में लगा दिया है जहां जहां उसको आपस में बांधना। तो हाउ नेचर वर्क्स, इतने माइंड एक ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, हमारी बिल्डिंग का वॉल नहीं है, जिसका बैक्टीरिया खुद नजर नहीं आता है, उसका न्यूक्लियस नजर नहीं आता है, न्यूक्लियस है ही नहीं, छोटा सा परदेसी सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। व्हेन यू आर गोइंग टू लुक थिंग्स इन डिटेल यू we are looking at the cell wall and the teichoic acids which are present in bacterial cell wall. Two types of teichoic acid we have found here: lipoticoic acid, which are spanning the peptidoglycan layers up to cytoplasmic membrane, and the cell wall teichoic acid, they are present in cell wall in different sites and at different positions to make it more firm. उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ जगहों में मौजूद है। Some protein wall associated. These are some wall associated proteins are also present here. ये gram positive का। Similarly, if you are going for the next one, teichoic acid क्या करता है?
regulates the movement of cation, anions into and out of the cell. It provides channels for the movement of ions outside to bacterial cell, inside to outside. पहला काम उसका परमिबिलिटी या उसकी फर्मनेस मजबूती का. Second work is transportation of molecules from outside to inside and inside to outside of the bacterial cell. पहला फंक्शन टेकोइक एसिड का ये. Teichoic acid regulates the movement of cation into and out of the cell. Second, assume in cell growth. It also supports in growth of the bacterial cell. Provides some basic structure for the during division or during its growth of the bacterial cell. Provide walls antigenic specificity diagnosis on the basis of proteins which are present on surface or teichoic acid which is present on surface of the gram-positive bacterial cell wall that can be determined on its specificity. On its specificity, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प कर लेता है कि यार ये वाला बैक्टीरियम. सपोज हम कि दो एनिमल्स के दरमियान ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो उसके अंदर कोई खास निशानी देखने चले जाते हैं. यार अगर ये इस ब्रीड का है तो उसके अंदर ये निशानी मौजूद होगी. इसी तरह बैक्टीरियल सेल में जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है टेकोइक एसिड जो जिस हिसाब से मौजूद है, जिस कंपोजिशन और जिस स्ट्रक्चर के साथ सरफेस के ऊपर मौजूद है, उस बेस पर हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं कि हाँ यार ये वाला बैक्टीरिया है. Because most of the microorganisms which are present on this globe on surface, those are gram-positive, and all gram-positive bacteria have thick cell wall structure, many layers of peptidoglycan, and teichoic acid is present. Two types of teichoic acid: cell wall teichoic acid and lipoteichoic acid, जो cell wall को cell membrane के साथ जाकर bind कर लेता है. तो उसके ऊपर जितना बाहर बच गया है उसको हम उसकी बुनियाद पर we are going to identify, we are going to diagnose, we are going to differentiate bacterial cells. Assume करना, वहां से आगाज करना, फंक्शन को स्टार्ट करना. अब आते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. बिकॉज टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एंड प्रीडोमिनेंट मौजूद हैं. वन इज ग्राम पॉजिटिव, अनदर इज ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव किससे, और इन दोनों का डिफरेंस कहां पर है? नथिंग एल्स इज डिफरेंट, ओनली डिफरेंस इज प्रेजेंट इन सेल वॉल. एक की सेल वॉल बड़ी है और एक की सेल वॉल छोटी है. जिस तरह हाथी का चमड़ा थोड़ा सा मोटा होगा और इंसान का चमड़ा थोड़ा सा पतला होगा. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल consists of one layer of peptidoglycan. One layer of peptidoglycan. लेकिन एक चीज और मौजूद है, एट आउटर मेम्ब्रेन. ये चीज इजाफी है इसके अंदर, ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कर लेती है आप लोगों को, किसी भी चीज में मदद देती है. कैप्सूल, इसका आउटर मेम्ब्रेन से मुराद कैप्सूल नहीं है, ठीक है ना. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल contain only one layer of peptidoglycan and
इन आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल के ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। Don't contain teichoic acid. teichoic acid बिल्कुल निष्ठा। The peptidoglycan is bonded to lipoprotein. Lipid linked to protein in the outer membrane. अब इसके पास अब यहाँ पर ये लिख थोड़ा सा, उसके बाद आपने एक सेकंड के लिए अपने ध्यान में थोड़ा सा सोचना है कि what is going on. Gram-negative bacterial cell wall में there is only one layer of peptidoglycan, but there is outside membrane and inside भी कोई membrane है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब है सेल वॉल के दोनों तरफ एक मेम्ब्रेन मौजूद है। इनर साइड में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मौजूद है और आउटर साइड में एक इजाफी लेयर आपको मिल गई है इन आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन टेकोइक एसिड मौजूद नहीं है। अब उसके साथ पेप्टाइडोग्लाइकेन इज बॉन्डेड टू लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन है जो आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक लेयर को आपस में जोड़े रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम ग्राम स्टेनिंग कर लेते हैं तो इस जगह में हमें डिफरेंस मिलता है। We can find, we can differentiate at this stage. Suppose ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर याद है, मोटी सी लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर पुटिंग, क्रिस्टल वायलेट जब हम प्लेस करते हैं वो क्या करता है कि अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो डायरेक्ट पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन अगर वो ग्राम नेगेटिव है तो किसके साथ अटैच होगा, आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। दिस मेक्स द डिफरेंस। ग्राम पॉजिटिव है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, ग्राम नेगेटिव है तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। उसके बाद हमने आयोडीन डाल दिया, सीवीआई कॉम्प्लेक्स बन गया। सीवीआई कॉम्प्लेक्स पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ मजबूती से अटैच हो गया और ग्राम नेगेटिव में किसके साथ अटैच हो गया, आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, डिकलराइजेशन कर दिया अल्कोहल से। अल्कोहल से जब डिकलराइजेशन की तो अल्कोहल हैज नो एबिलिटी टू रिमूव सीवीआई कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव के ऊपर जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स या क्रिस्टल वायलेट अटैच हुई थी वो हम रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो जैसे ही हमने अल्कोहल से इसको वॉश करना शुरू कर दिया, ये ऊपर से रिमूव हो गई, तो जितना सीवीआई कॉम्प्लेक्स ऊपर बन गया था वो भी रिमूव हो गया, वो हट। तो दोबारा नीचे क्या नजर आ गया, इसमें ग्राम नेगेटिव के ऊपर से मेम्ब्रेन हट गई, दोबारा पेप्टाइडोग्लाइकेन नजर आ गया। अब हमने सेकेंडरी डाई जब इस्तेमाल की, सेफ्रानिन जब इस्तेमाल की, तो अब वो जाकर किसके साथ अटैच हो गई, ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ अटैच हो गई और ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ सीवीआई पहले से बाइंड हो चुका था और उसमें सेफ्रानिन के लिए जगह नहीं थी, तो जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव जो है सेफ्रानिन का कलर देगा जो कि पिंक है और ग्राम पॉजिटिव में क्रिस्टल वायलेट पहले से जाकर बाइंड हुआ है वो उसका कलर पॉजिटिव दे, वो वायलेट कलर दे देगा। पिंक सेफ्रानिन का कलर नजर आए और उसका कलर ग्राम पॉजिटिव का पर्पल नजर आए। The outer membrane of gram negative bacteria consists of, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या चीज है, लिपोपॉलीसेकेराइड मौजूद हैं, लिपोप्रोटीन्स मौजूद हैं एंड फास्फोलिपिड्स मौजूद हैं। ग्राम नेगेटिव के आउटर मेम्ब्रेन ये तीन चीजें मौजूद हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड्स।
लिपोपॉलीसेकेराइड अगेन दो तरह के हैं। और पॉलीसेकेराइड जिसको हम बसा अवकाश और एंटीजन भी कहते हैं, और लिपिड पोर्शन, लिपिड जो कि इंडोटॉक्सिन होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर टॉक्सिन की फॉर्म में लिपिड पोर्शन जिसको हम लिपिड ए कहते हैं, दैट इज वर्क्स एज इंडोटॉक्सिन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो टॉक्सिसिटी होती है, जो टॉक्सिन होता है, तो वो कहाँ मौजूद है? लिपोपॉलीसेकेराइड में मौजूद है। इसमें एक पॉलीसेकेराइड है जो एज ए एंटीजन काम करता है, यानी बैक्टीरियल सेल अगर अंदर चला गया किसी भी ह्यूमन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको इम्यून सिस्टम उसी एंटीजन की बुनियाद पर उसको रिकॉग्नाइज करता है, यार ये बाहर से आया हुआ मटेरियल है। नहीं तो आउटर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम है, आउटर मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट द सेम, जस्ट डिफरेंस इज प्रेजेंट इन ओ एंटीजन which will be recognized by human immune system or body defense mechanism will recognize this. And another lipid portion is endotoxin, which is responsible of toxin. क्योंकि टॉक्सिन भी कोई केमिकल होता है, उसकी भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, एंड स्ट्रक्चर जो भी है बाहर, दैट इज टॉक्सिन, वो है टॉक्सिक मटेरियल। चलो ठीक है, यहाँ तक एक थोड़ा सा अगर है तो एक टॉपिक क्लियर हो तो अच्छा है ना। अच्छा ये चीज बस ये पढ़े प्लीज। Porine is a protein in the outer membrane which is important in the permeability of outer membrane. कुछ प्रोटीन जो मौजूद हैं जिनको हम पोरिन्स कहते हैं, is a protein in the outer membrane which is important for the transportation of molecules from bacterial cell and to bacterial cell. आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन जो मौजूद हैं जिनको हम पोरिन कहते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक प्रोटीन होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर जाने में और बाहर से सेल के अंदर आने में मदद देती है। is a protein in the outer membrane which is important in the permeability of outer membrane, ताकि बाहर से अगर बिल्कुल सील होगी तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल जज्ब नहीं हो सकेगा, neither water will be absorbed, neither any antibiotic will be absorbed, कोई भी चीज ना अंदर जा सकेगी ना बाहर जा सकेगी। तो लेकिन उसके अंदर पोरिन प्रोटीन हैं जो जिम्मेदार हैं, इस बात का रिस्पॉन्सिबल है, या रास्ता फराहम करती हैं कि बाहर से मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ सकें और सेल के अंदर से मॉलिक्यूल सेल के बाहर जा सके। इसके ऊपर कल डिबेट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद जरा आपका लेक्चर रिवाइज भी हो जाएगा, तो इसके लिए आप जो क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं वो पूछ लें और मैं उस वक्त तक जो है ना आपके अटेंडेंस का काम करूँगा। स्टॉप।